Hello and welcome to everybody at abhimanu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. As you know that at abhimanu IS, we have commenced a very valuable series, that is issues and analysis, and in that series we discuss the important issues which are considered important for the purpose of the UPSC and state civil services preliminary and main examinations. So पहले भी आप डिफरेंट टीचर्स के द्वारा इश्यूज एंड एनालिसिस के ऊपर जो लेक्चर्स है, वीडियोस है, आई एम वेरी मच श्योर कि आप उनको वॉच करते होंगे. यू मस्ट बी एंजॉइंग दोस वीडियोस और लेक्चर्स वी कैन से. तो आज मैंने जो इश्यूज एंड एनालिसिस सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक लिया है वो इंडियन इकोनॉमी के साथ रिलेटेड टॉपिक है और उस टॉपिक का नेम है प्रोटेस्ट्स इन चाइना, इज़ इंडिया रेडी टू कैश अपॉर्चुनिटी. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, बिकॉज चाइना हैज़ अडॉप्टेड ज़ीरो कोविड पॉलिसी और उस ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए चाइना के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स हैं जो वो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए गए हैं. एंड दैट इज़ वाई द पीपल देयर आर फेसिंग ए नंबर ऑफ हार्डशिप्स इन द वेक ऑफ दोज very severe restrictions, and even the businesses are also suffering over there. So that is why in the wake of that पिछले दिनों में चाइना के अंदर बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट्स किए गए. इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल पार्टिसिपेटेड इन दोज प्रोटेस्ट्स. एंड उन प्रोटेस्ट्स को एड्रेस करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ वायोलेंट मीन्स एक्सरसाइज किए. एंड in the wake of that we can say that some of the foreign companies which have set up their establishments over there in China, they are in mood of shifting their bases from China to some other countries. And obviously when they think about shifting their base from China to some other country, then India comes at number one. So therefore in the wake of that we are going to discuss today that चाइना के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स को देखते हुए, उन प्रोटेस्ट्स को के चलते हुए जो भारत के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, particularly the economic opportunities. And in the wake of that the issue is that क्या भारत उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने के लिए रेडी है या नहीं है. That is the point. So before starting the formal discussion of this topic, let me share an important information with you. At abhimanu IS we are conducting fresh batches targeting 2023-24 for the prelims and mains examinations of UPSC and state civil services examinations. And these courses will be 1-year courses, and which will be available through offline and online mode. We are providing 7 days free trial classes also. If you want to join, you may click on the link given in the description. So let us start the discussion of today's topic. So protests in China. तो यहाँ क्या है कि अगेंस्ट द चाइनीज़ गवर्नमेंट्स ज़ीरो कोविड पॉलिसी, जैसे मैंने पहले बात की है, the government of China has adopted a zero COVID policy, and in the wake of that very severe restrictions have been imposed there in China, lockdowns, etc. And therefore the people are fed up from those type of restrictions now, and they are in the streets and protesting against the government of China. The Chinese government is using violent force टू डील विद द प्रोटेस्टर्स. सो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन प्रोटेस्टर्स को डील करने के लिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो सॉर्ट ऑफ द वायोलेंट फोर्सेस है जो दे आर अडॉप्टिंग दोस.
This led to attempts at censorship of social media, which has provoked further protests on the ground. So इसके चलते हुए क्या है कि वहाँ चाइना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत सारे जो यू कैन से दिस सैंक्शंस हैं जो वो इम्पोज कर दी गई है, सेंसर कर दिया गया है मीडिया को, जिनके चलते हुए लोगों के अंदर जो sort of the frustration, sort of the dissatisfaction, sort of the anger that is higher in comparison with the previous times. So protesters were seen chanting, need human rights, need freedom, and we don't need lifelong rulers, we don't want emperors. So वहाँ जो protesters हैं, so clearly you can say they are raising their voice against the Xi Jinping and the policies of his government. So what are they saying? They saying that we need human rights. हमें human rights चाहिए, हमें freedom चाहिए, हमें lifelong rulers नहीं चाहिए. We don't want emperors. हमें emperors नहीं चाहिए. That means they are pro-democracy people who are in the streets and doing the protests. The public protests represent a severe challenges to President Xi Jinping's authority, with some protesters daring to call for his removal. Even यहाँ तक के some of the protesters हैं जो वो शी जिनपिंग की रिमूवल की भी डिमांड कर रहे हैं अभी. So now consequence of the protests. इन protests के फिर consequences क्या हैं? पहली बात है कि enormous economic disruption. Economic disruption हो रही है वहाँ. Obviously economic activities are getting affected. So कारोबार इफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आर ऑलमोस्ट एट द हॉल्ट ओवर देयर, सो दैट इज़ वाई पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स. तो टम्बलिंग ऑफ चाइनीज स्टॉक मार्केट एंड द युआन, सो इसके चलते हुए चाइना की जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ आल्सो क्रैशिंग एंड द वैल्यू ऑफ द चाइनीज करेंसी इज़ आल्सो कमिंग डाउन. तो द बिग क्वेश्चन इज़ द चाइनीज़ इकोनॉमिक मेरेकल ओवर. तो क्योंकि आज तक जो चाइना की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी दैट वाज द इकोनॉमी ऑफ चाइना, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इन चाइना ऑफ द वेरियस कंपनीज फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर. तो अब एक बड़ा क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि क्या जो चाइना का इकोनॉमिक मेरेकल है वेदर इट इज़ ओवर नाउ और विल इट यू कैन से go further. Workers revolt over the Foxconn iPhone factory, the world's largest in central China, is worth noting. So एक वहाँ जो Foxconn iPhone factory है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो iPhone मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम इसको कहते हैं. तो इस iPhone फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं वहाँ के, so you can say they are also revolting. So this factory is located in central China and the revolt of the workers is important over there. This has severely disrupted Apple's global supply, causing it to lose $1 billion in iPhone sales every week. तो इसके चलते हुए जो एप्पल के जो आईफोन की जो ग्लोबल सप्लाई है that has been disrupted now, and that is why the company is losing approximately $1 billion every week and highlighting the troubles of the largest global technology firms with manufacturing bases in China. So ये अपने आप में इंडिकेट करती है कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो चाइना के अंदर जो काम कर रही हैं, सो उनको कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनका कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस होने जा रहा है. सो दीज आर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड विद दिस. तो सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. तो अब जो ये हैपनिंग्स हम देख रहे हैं चाइना के अंदर, सॉर्ट ऑफ द अनरेस्ट इन चाइना in the wake of the severe restrictions to support the China's zero COVID policy. So इसका इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? So even before the recent protests took place in China, Apple has started making the iPhone 14 in India so as to diversify its supply chain
अवे फ्रॉम चाइना। सो एप्पल ने ऑलरेडी अपना जो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश कर लिया है। So they are basically diversifying their supply chain away from China. So this is part of a general move by the US tech companies seeking to shift away from solely depending on manufacturing facilities in China. So because चाइना के अंदर अब कोविड से लेकर के अब तक जिस किस्म की वहाँ कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, तो उनके चलते हुए एंड मोर ओवर द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द यूएस एंड चाइना's tilt towards the Russia in the emerging new global order. तो इन सब के चलते हुए जो कंपनीज हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में, तो दे आर थिंकिंग दैट इट इज़ नॉट यू कैन से ए वाइज स्टेप टू depend solely on China as far as their manufacturing facilities are concerned. So that is why they are seeking to shift away their manufacturing facilities from China. In this situation, India and Vietnam are being looked at closely by tech companies. So ये जो फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इन सब के चलते हुए इनको क्या नज़र आ रहा है कि इंडिया एंड वियतनाम आर द बेटर ऑप्शंस. So Foxconn plans to more than double its iPhone production in India in 2023 compared to 2022. सो अगर हम फॉक्सकॉन की बात करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि चाइना के अंदर एप्पल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिनको चाइना के अंदर ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए $1 बिलियन एवरी वीक का लॉस बियर करना पड़ रहा है. तो वो जो कंपनी है, दैट कंपनी हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट्स बेस इन इंडिया एंड उन्होंने जो अपनी जो आईफोन की प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, वो 2022 के कंपैरिजन में उन्होंने डबल कर दी है. 2023 में उनका ये प्लान है. द लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ इट्स आईफोन इन इंडिया कंपेयर टू द करंट 4%. सो अभी ये जो फॉक्सकॉन है, ये एप्पल के टोटल जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग है उसका 4% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही है. एंड इन द डेज टू कम इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट उनका जो प्लान है कि दे वांट टू डू अबाउट हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स इन इंडिया. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. चाइना के अंदर जो कुछ अब चल रहा है उसके चलते हुए. तो नाउ द पॉइंट इज इंडिया रेडी टू कैच द अपॉर्चुनिटी. तो अब ये जो बड़ा क्वेश्चन आता है कि in the wake of all this, can India catch this opportunity or the opportunity will simply pass away from India? So there are two types of opinions. One opinion is that you can say there are many factors which are favoring India at this time. So that means in the wake of all those factors, we can say a set of factors is there in the wake of which we can say that this iPhone, this you can say India is ready to accommodate the opportunity which China is delivering today. And there are some factors against India also at this point of time. So कुछ factors ऐसे भी हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो हम ये देखते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की फेवर में हैं, जिसके चलते हुए हम ये कह सकते हैं कि यस, इंडिया इज़ रेडी टू कैच द अपॉर्चुनिटी इन द वेक ऑफ दीज फैक्टर्स. एंड वो कौन से फैक्टर हैं जिनके चलते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पॉसिबली इज़ नॉट रेडी टू कैच दिस अपॉर्चुनिटी. तो हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं. तो अगर हम फैक्टर्स फेवरिंग इंडिया की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, जब उन्होंने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में किसी कंट्री में जाके करनी होती है, तो होस्ट कंट्री में उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? स्टेबिलिटी. एंड जो भी स्टेबिलिटी है वो आजकल हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर इन कंपैरिजन मोर स्टेबल. सो भारत की फेवर में जो सबसे बड़ा पॉइंट जाता है वो क्या है कि इंडिया इज़ ए सक्सेसफुल एंड स्टेबल डेमोक्रेसी
यहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है दैट इज़ कंपैरेटिवली comfortable environment if we compare it with China. So India has earned sufficient goodwill the world over. भारत एक ऐसा कंट्री है जिसने सिंस इट्स इंडिपेंडेंस दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना अच्छा रसूख बनाया है एंड इट हैज़ वॉन द गुडविल इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो ये भी इंडिया की फेवर में जाता है. दैट इज़ वाई द इन्वेस्टर्स from different countries feel it safe or feel it comfortable to bring their money into India for the purpose of the business. Government of India is making serious efforts to make India a manufacturing hub. For example, Make in India. तो भारत की तरफ से भी गवर्नमेंट इस चीज़ के प्रति कॉन्शियस है एंड आवर गवर्नमेंट इज़ मेकिंग वेरी सीरियस एफर्ट्स टू ब्रिंग द फॉरेन दिस जो MNCs हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको इंडिया में लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट रेडी है एंड दे आर ब्रिंगिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, जिनके अंदर एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है दैट इज़ मेक इन इंडिया. तो गुड क्लाइमेट इज़ देयर इन इंडिया, multicultural Indian society which is very much accommodating. So a long coastline easily accessible from almost the entire India. तो अगर कोस्टलाइन हो, यू कैन से इजीली एक्सेसिबल हो, तो दैट इज़ गुड फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम सम कंट्री. सो ये भी इंडिया की फेवर में एक पॉइंट जाता है. एंड सबसे बड़ा पॉइंट है जो दैट इज़ चीपर मैन पावर इन इंडिया. स्किल्ड वर्कर्स अर्न फॉर लेस देन दे डू इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो इंडिया के अंदर चीपर मैन पावर मिलती है. चीपर मैन पावर इन द सेंस के अगर हम अनस्किल्ड लेबर की बात करें, वो भी हमारे कंट्री में काफ़ी तादाद में हैं और कंपैरेटिवली दे आर लेस पेड इन इंडिया इन कंपैरिजन विद द अदर कंट्रीज़. और अगर हम स्किल्ड मैन पावर की बात करते हैं तो वो भी हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी तादाद में है. सफिशेंट यू कैन से स्किल्ड मैन पावर यहाँ से मिल जाती है इंडिया में से. एंड एज फार एज द वेजेस टू दैट स्किल्ड मैन पावर इज़ कंसर्न्ड, तो वो भारत के अंदर लेस पेड पर्सनस हैं. So that is why it becomes cheaper for the foreign manufacturing companies to set up their bases in India because here the cheap manpower is available to the companies. And India क्योंकि you can say world's second most populous country, so that is why it is a big market as well. And India's unique foreign policy, which is based on the pillars of peace and the we can say inclusivity. So India एक शांति पसंद नेशन है. हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा इंक्लूसिविटी एंड पीस के ऊपर बेस्ड रही है. So that is why in the wake of all these factors we can say that it is good for the foreign companies to come to India to set up their bases in India. Their investment will be safer here and they will feel more comfortable in our country here. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो भारत के पक्ष में जाते हैं कि अगर चाइना के अंदर कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस की वजह से अगर एक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए क्रिएट हो रही है, तो इन द वेक ऑफ दीज फैक्टर्स वी कैन से दैट यस इंडिया इज़ रेडी टू कैश दिस अपॉर्चुनिटी. एंड दूसरा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं. जैसे हम जानते हैं कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं है. भारत के बहुत सारे पार्ट्स में अभी रोड्स की प्रॉब्लम है, रोड्स की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी प्रॉब्लम है. पुअर वर्क एथिक्स. लास्ट ईयर फॉक्सकॉन्स फैक्ट्री इन तमिलनाडु सीज्ड ऑपरेशंस फॉर अराउंड ए मंथ एज वर्कर्स वॉकड एंड मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस फॉलोइंग एन आउटब्रेक ऑफ फूड पॉइजनिंग. जो हम फॉक्सकॉन कंपनी की बात कर रहे थे वो कंपनी का बेस, उस कंपनी का बेस इंडिया में तमिलनाडु में है. एंड लास्ट ईयर वहाँ कुछ फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई और उसके चलते हुए वहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्होंने मास प्रोटेस्ट किया. 1 महीने तक वो फैक्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी को बंद रखना पड़ा. ओके, सो ऐसी चीज़ें हैं जो
ये मेनली फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करती हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीज, import duties are on inputs are high, absence of the this free trade agreement। तो भारत ने कुछ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए भी हैं, जैसे अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, यूएई के साथ भी हमारा एक ट्रेड डील हुई है, हमारा आशियन कंट्रीज के साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट कंपैरेटिवली वी कैन से दैट भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के अब तक थोड़ा हेजिटेंट रहा है। सो भारत के अंदर जो भारत ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थोड़े कम किए हैं। दैट इज़ वाई जब कोई फॉरेन मैन्युफैक्चरर इंडिया में आएगा तो वो ये सोचेगा कि अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो थोड़ा कॉस्टलियर पड़ेगा उन कंपनीज को। एंड हाई कॉस्ट ऑफ पावर, हमारे कंट्री के अंदर जो एनर्जी एक इशू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी एक इशू है, पावर की जो कॉस्ट है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी हाई, so that is another issue। and logistical hurdles are also there, the amount of time it takes to get inputs out of ports to factories। पोर्ट से जो भी बाहर से हम रॉ मटेरियल या कुछ इनपुट्स परचेज करते हैं उनको भारत की पोर्ट से लेकर के फैक्ट्री तक लेके आने में टाइम बहुत लगता है। एंड सिमिलरली फैक्ट्री में से जो माल रेडी होता है उसको एक्सपोर्ट के लिए शिप तक जाने के लिए टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है। सो दिस इंक्रीजेस द लॉजिस्टिक कॉस्ट आल्सो ऑफ द फैक्ट्रीज। सो इन द वेक ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी कैन से कि जब तक ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जब तक ये सब एड्रेस नहीं कर लेते हम, तब तक हम कहते हैं कि भारत अभी अपॉर्चुनिटी कैश करने के लिए रेडी नहीं है। बट स्टिल इन द वेक ऑफ दिस वी कैन से दैट इंडिया को इन सब इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी एड्रेस करना चाहिए। करप्शन इज़ आल्सो अनदर बिग इशू इन इंडिया, इंडिया को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कभी कभी कहीं कहीं हमें मिलती है कि देर आर सर्टन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट हमारा डिस्टर्ब्ड है, हमारे जो सेंट्रल पार्ट में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को हमें एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली एंड रिक्वायर्स टू ग्रेटली इम्प्रूव इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं और उसको रिटेन करके रखना चाहते हैं तो हमें बहुत जल्दी से यू कैन से हमें जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है भारत के अंदर, हमें उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि चाइना के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है, इशू ये है कि क्या भारत उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए रेडी है या नहीं है। हम ये कहते हैं उसके चलते हुए कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि यस इंडिया इज़ रेडी टू कैश द अपॉर्चुनिटी, बट ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टन फैक्टर्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो ऐसे फैक्टर हैं जिनको देख के हम ये कहते हैं कि इंडिया इज़ प्रॉबेबली नॉट येट रेडी टू कैश दिस अपॉर्चुनिटी, कि ये अपॉर्चुनिटी परहैप्स पास ना हो जाए ऐसे ही। सो इसके चलते हुए सजेशन ये बनती है कि भारत जो अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं उनको जल्दी एड्रेस करे और इंडिया के अंदर जो करप्शन का सल्यूशन करे, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर बनाए और कुछ चीज़ों के चलते हुए जो इंडिया की इमेज जो बाहर ख़राब हो रही है उनको थोड़ा करेक्ट करे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जो, इसको थोड़ा इम्प्रूव करे भारत। और अगर भारत इन चीज़ों के प्रति अपनी सिंसेरिटी दिखाता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ one of the best destinations for the foreign investors। So this is all about this topic। I hope the point is clear to you and अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, so I will be happy to address your query। Thank you very much, all the best। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।